دیا ہے جہاد کا فتویٰ. ان کو دیکھیے گا. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا رے. پورا مجمع بولیے گا. آج بھی ہے اور میرے نبی سے میرا رشتہ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا رے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا رے. آئے ہائے بھائی, میں نے جو دعائیں دی ہیں نا, یاد رکھیے گا. یہاں پہ کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے یقین ہے میری دعا ضرور قبول ہوگی. اب اتنا بڑا دعویٰ ہے تو دلیل تو چاہیے نا. میں نہیں کہتا بلکہ حضور نے فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. حضور نے فرمایا ہے دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے, وہ تینوں جب دعا مانگتے گئے اللہ تعالی ان تینوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. وہ تینوں میں پہلا کون ہے, دوسرا کون ہے, تیسرا کون ہے؟ ذرا سنیے گا. آقا کریم نے فرمایا ہے دعوت المظلوم. مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے, مظلوم کسے کہتے گئے؟ آپ کو اللہ نے طاقتور بنایا, آپ کا پڑوسی سائیڈ میں کمزور ہے, آپ اس پہ اتیاچار کرتے ہو, آپ اس کے حق کو چھین لیتے ہو, آپ اسے مارتے ہو, آپ اس میں ظلم کرتے ہو, وہ مظلوم ہوتا ہے. یاد رکھنا لوگوں, مظلوم تو جانتا ہے یہ تو مجھ سے طاقتور ہے, اگر میں اس کے خلاف زبان کھولوں گا یہ میری چمڑیاں ادھیر دے گا, یہ مجھے جا کر نہ جانے کہیں جیل میں ٹھونس دے گا. لیکن یاد رکھنا لوگوں, ایک مظلوم جب روتا ہے رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں جا کر دعا مانگتا ہے, اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, فلا کو تو نے طاقتور بنایا ہے, مجھے تو نے کمزور بنایا ہے, وہ مجھ پہ ظلم کرتا رہتا ہے, میں تو اس کا بدلہ نہیں لے سکتا. لیکن میرے مولا ہم نے سنا ہے جس کا سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے اس کا سہارا پروردگار عالم تو ہوا کرتا ہے. اے پاک پروردگار عالم, اس مظلوم کی دعا کو قبول فرما لے. مصطفیٰ فرماتے گئے مظلوم ابھی دعا مانگ کر ہاتھ کو چہرے سے نیچے بھی نہیں لاتا ہے کہ اللہ تعالی مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کسی پہ ظلم نہ کیا کریں, کسی پہ آپ کسی کے حق کو نہ دبایا کریں. پہلا تو ہو گیا. دوسرا کون ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ہے دوسرا ہے دعوت المسافر. مسافر جب دعا مانگتا ہے, مسافر کی دعا کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے. میں بھی مسافر ہوں, یہاں آپ کے یہاں بہت سارے علماء تشریف لائے گئے 92 کلومیٹر کی دوری سے, وہ بھی مسافر ہے. اس لیے میں نے دعا دی ہے میرے مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے ان جلسے کے صدقے میں ان سبوں کو میرے مولا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا, اور حضور کے گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دینا, کیونکہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا. بلند آواز سے ایک شعر اور سنیے گا. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا رے. اب ذرا سنیے اسلام سندر مذہب کیسے ہے, اسلام شاندار, اسلام کی بیوٹنس کیا ہے, اسلام کی خوبصورتی کیا ہے. آپ کو بتانا ہوگا, دوسروں کو محبت سے سمجھانا ہوگا کہ میرے بھائی تم کو اگر اسلام سمجھ
समझना है, हमें मत देखो, बल्कि तुम हिस्ट्री का मुताला करो, तुम किताबों का मुताला करो, तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करो, तुम हुजूर की सीरत, हुजूर की जीवनी पढ़ते जाओगे, तुम्हें इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। क्या है इस्लाम, कितना सुंदर मजहब है इस्लाम, जरा गौर से सुनिएगा। हमारा इस्लाम क्या कहता है? एक बात बताइए, हमारे हाथ में और पाँव में नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है कि नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बताइए, है कि नहीं है? हाथ और पाँव में नाखून है, ये नाखून कितने दिनों तक ज्यादा से ज्यादा छोड़ सकते हैं? ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिए, ये कहेंगे 40 दिन के अंदर अंदर। वैसे तो 8-10 दिन में, हफ्ते में काट लिया करो, लेकिन अगर आप 40 दिन के अंदर अंदर अगर आपने नाखून नहीं काटा हाथ और पाँव के, तो ये नाखून 40 दिन से ज्यादा बड़े रखना ये मकरूह तहरीमी लिखा है, ये उलमा फरमाएंगे। लेकिन आइए, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक बात लिखी है, ये फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है। मसला ये है, ये तो 40 दिन और लोगों के लिए है, लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, यानी गाय या भैंस का दूध निकालता हो, तो उसके लिए 40 दिन वो इंतजार न करे, बल्कि बेहतर ये है और अच्छा ये है कि वो 10 दिन के 8 ही दिन में नाखून काट लिया करे। क्यों? उसके आगे रीजन लिखी है, उसके आगे वजह लिखी गई है। वजह ये लिखी गई है कि जो गाय या भैंस या जानवर का दूध निकालता है, अगर उसके नाखून बड़े रहेंगे, जानवर का दूध निकालेगा, कहीं बड़े नाखून कहीं जानवर के थन में लगकर, कहीं जानवर के थन में कोई जख्म ना हो जाए, कोई घाव ना हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना ख्याल रखने का हुक्म देता है, वो इंसानों का कितना ख्याल बताता होगा, वो इंसानों, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा, वो इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा। ये हमारा मजहब इस्लाम है। जो लोग कहते हैं मुसलमान इस्लाम तो खून बहाने का धर्म है, मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। पूछो इन उलमा से, किताब में आता है मसला ये है कि अगर आपका वजू 1 लोटा पानी से हो जाता है, तो ज्यादा पानी खर्च करना ये फजूल खर्ची है। आपको ज्यादा पानी बहाने से भी वजू जैसी इबादत में मना किया गया है। तो जो मजहब इस्लाम वजू जैसी इबादत में ज्यादा पानी बहाने से मना करता है, वो किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे देगा? लेकिन समझना होगा, पढ़ना होगा, उलमा से सुनना होगा, हुजूर की सीरत को पढ़नी होगी, हुजूर की सीरत को सुनना होगा, तब आपको पता चलेगा कि इस्लाम की ब्यूटीनेस क्या है, इस्लाम की सुंदरता क्या है। आइए मैं आपको और आगे बताता चलूं। हुजूर ने फरमाया है, बनी इसराइल में एक औरत थी, औरत, वो औरत 40 साल तक उस औरत ने नेकियां किया है, 40 साल तक वो औरत अल्लाह की इबादत में लगी रहती थी, 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। पूरा मजमा बोले कितने साल, और ऊंचा बोले कितने साल? 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। लेकिन एक दिन घर में दूध को उबाल कर रखी है, अचानक एक बिल्ली आई और दूध के ढक्कन को हटाकर, हांडी के ढक्कन को हटाकर सारा दूध वो बिल्ली ने पी लिया। बिल्ली के दूध पीते ही औरत ने जब देखा इसका पारा गर्म हो गया, ये गुस्से में आग बबूला हो गई और वो सोच में पड़ गई कि बिल्ली ने सारा दूध पी लिया। उसको बड़ा गुस्सा आया, बिल्ली को कमरे के अंदर बंद कर देती है, बाहर से लॉक कर देती है दरवाजा, ताला बंद करके दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई कहीं। 8-10 दिन के बाद जब वापस आई तो वो भूल गई थी कि हमने बिल्ली को कमरे में बंद किया है। गुस्से के मारे दौड़कर आई, जब ख्याल आया, जैसे ही दरवाजा खोलती है, अंदर गई, देखती है कि बिल्ली भूख और प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गई है। इसने
बिल्ली को उठाया, जाकर कचरे के ढेर में फेंक देती है। कचरे के ढेर में फेंकना था। 40 साल की इबादत करने वाली उस औरत ने जैसे ही बिल्ली को फेंका, आवाज आई, ए औरत, अरे तुमने अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक बिल्ली पे रहम नहीं किया है, क्या हो जाता? 1 केजी दूध ही तो बिल्ली ने पिया था, तूने जाकर इसे अंदर बंद किया और ये भूखी प्यासी बिल्ली मर गई। आवाज आई, ए औरत, अल्लाह ने तेरे 40 साल की इबादत को बर्बाद फरमा दिया है और तेरा ठिकाना जहन्नम बना दिया है। अरे ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक पर भी रहम करो, और हुजूर ने फरमाया है जो अल्लाह की मखलूक पे रहम नहीं करता है, कयामत के दिन अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाएगा। और आगे चलिए, आपने तस्वीर का एक रुख देखा है, दूसरा रुख भी मुलाहजा करते चले। एक और औरत है, बनी इसराइल की रहने वाली है, वो 40 साल तक बुराई में 40 साल गुजारी है, 40 साल तक गुनाह करती रही है, 40 साल तक वो पाप करती रही है, और इतनी खतरनाक पापी थी कि अगर किसी रास्ते से गुजरती थी, छोटे छोटे बच्चे भी देखकर कहते थे, अरे भागो भागो, वो पापी औरत आ रही है। अगर उसका साया हम लोगों के जिस्म पे पड़ गया, कहीं अल्लाह ताला उसकी वजह से अल्लाह ताला हम पर भी अजाब नाजिल ना फरमा दे। वो इतना बड़ा पापी औरत है। वो औरत चली जा रही है, सख्त गर्मी है, बहुत तेज धूप है, और ऐसी धूप है कि पांव रखना जमीन पे मुश्किल है। चलती जा रही है, एक कुआं देखती है, प्यास लगी थी, कुएं के पास गई तो एक अजीब मंजर देखती है। एक कुत्ता का बच्चा है, जिसे कुत्ते का पिल्ला, छोटा सा बच्चा कुत्ता का, वो बगल में कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा है, और प्यास की शिद्दत की वजह से, सख्त गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से जबान को लटकाए हुआ है, और कुएं के इर्द गिर्द जो कीचड़ है, उस कीचड़ को चाट चाट कर किसी तरह प्यास बुझा रहा है। इस औरत ने उस कुत्ते के बच्चे को देखा, औरत को दया आ गई, औरत को रहम आ गया। औरत ने रस्सी तलाश करना शुरू किया, रस्सी ना मिली। औरत ने डोल तलाश करना शुरू किया, डोल भी ना मिली। आखिरकार उसने सोचा, चलो एक तरकीब सूझी। जो दुपट्टा कांधे पे रखी थी, दुपट्टे को उतारती है, दुपट्टे को फाड़ फाड़ कर रस्सी बनाती है, जोड़ जोड़ कर लंबी रस्सी बनाई। अब डोल जबना है नहीं है, उसने अपने पांव से जूती उतारा, जूती उतार कर रस्सी को बांधती है, उस जूती में कुएं में डाल देती है। जूती में थोड़ा सा पानी आया बाहर कुएं से, जैसे ही जूती को बाहर लाती है, पानी थोड़ा सा जूती में आया, जूती को पकड़ती है। उधर कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो औरत जूती से पानी के कतरे टपकाती जा रही थी। अब जरा सुनिए, इधर वो औरत कुत्ते के बच्चे के मुंह में पानी का कतरा जूती से टपकाती जा रही थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी। अल्लाह की रहमत झूम झूम कर कह रही थी, ए औरत, अरे तूने अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक कुत्ते के बच्चे पर रहम किया है, अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। अल्लाह ने तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन कादरी साहिब क़िबला। ये मजहब इस्लाम है। जरा पूरा मजमा बोलो, इस्लाम की सुंदरता की वजह से इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम किसी का हाथ नीचे न रहे। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अब जरा सुनिएगा मेरे भाइयों, मैंने क्या, और एक बात और सुनिएगा। आजकल लोग, एक बात बताएं, अभी एक नारा चल रहा था, जिसको देखो आई लव मोहम्मद। अरे बोलो ना भाई, बोलो बोलो बोलो, क्या 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 जबान पे, क्या जबान पे, जिसके जबान पे देखो क्या जारी था,
बच्चा भी कहे आई लव मोहम्मद, बूढ़ों ने भी कहा आई लव मोहम्मद, उलमा भी कह रहे थे आई लव मोहम्मद, बच्चे भी कह रहे थे, घर की औरतें भी कह रही थी आई लव मोहम्मद। बताइए कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में गूंज रहा था आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लेकिन ओ सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, मोइनुद्दीन कादरी एक बात कहकर जाना चाहेगा कि ओ कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने वालों, बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखने वालों, कपड़ों पे आई लव मोहम्मद लिखने वालों, छत की दीवार पे आई लव मोहम्मद लिखने वालों, खूब लिखिए। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये होगा, उससे बड़ी बात ये होगी, कागज पे लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी, अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार पे आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी जिंदगी पे आई लव मोहम्मद लिखो। क्यों? इसलिए कि कागज पे अगर आई लव मोहम्मद लिखोगे दुनिया का कोई फाड़ सकता है, अगर बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई फाड़ सकता है, अगर छत की दीवार पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई दीवार को तोड़ सकता है, अगर कागज या प्लास्टिक पे आई लव मोहम्मद लिखोगे कोई तोड़ सकता है। लेकिन अगर दिल में हमने आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया तो जब तक जिंदा रहोगे किसी माँ के लाल में ये दम नहीं है कि हमारे दिल के अंदर से आई लव मोहम्मद को मिटा सके, हमारे दिल की तख्ती से आई लव मोहम्मद को खत्म कर सके। जब तक जिंदा रहोगे दिल के अंदर अगर आई लव मोहम्मद लिखा होगा तो ये कहते रहोगे या रसूल अल्लाह, हम यहाँ जब तक रहेंगे आपकी मोहब्बत में रहेंगे, कब्र में जाएंगे आपका दीदार होगा, हश्र में उठेंगे परवरदिगारे आलम का दीदार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात यह होगी, अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। आई लव मोहम्मद अगर दिल के अंदर आपने लिख लिया, दिल की तख्ती पे लिख लिया, तो फिर याद रखिएगा कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी फर्ज रोजों को नहीं छोड़ेगा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगा। वरना तो आज देखे या जाते गए कि जो बेटा माँ से साल भर बात नहीं करता है वो भी हम जैसे खतीबों को और ताहिर रजा रामपुरी साहब शायर को वो मुकम्मल लाकर हजार हजार रुपए लुटा देते हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर तेरी माँ राजी नहीं है, अगर तेरा बाप राजी नहीं है, तो तू क्या समझता है कि तू यहाँ शायरों पे खतीबों पे पैसा लुटा देगा तो क्या हुजूर राजी हो जाएंगे? अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। पहले अपने माँ बाप को राजी करो, अपने असातिज़ा का सम्मान कीजिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, आज आदमी थोड़ा सा बड़ा हो जाए उस्ताद को भूल बैठता है। अरे अगर अली बाही उस्ताद ने पढ़ाया है उसके मर्तबे को तेरा बाप भी नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि तेरी माँ और तेरे बाप ने तो पैदा करके लाके तुझे मदरसा दारुल गौसिया गरीब नवाज में लाकर डाल दिया है। उन्होंने तो मिट्टी की शक्ल में तुझे यहाँ दिया था। आज कारी गुलाम साबिर साहब, मुफ्ती मुस्तकीम साहब और एक हजरत कौन है, मौलाना उस्मान साहब, इन लोगों को आप इनके कदमों को चूमिए और इनको मुबारकबाद दीजिए, एहसान मानिए कि आपने मिट्टी की शक्ल में इन्हें दिया था, ये आपको सोना बनाकर वापस कर रहे हैं। आज आपका बेटा हाफिज कुरान बना है। इन तीनों को, वरना हमें सब लोग देख रहे हैं, लड़का जो हाफिज कुरान बनता है उसके माँ बाप भी आकर तलाश नहीं करते हैं कि बेटा तेरे हाफिज साहब कौन है जिसने तेरे सीने में कुरान के 300 पारों को उतार दिया है। वो नहीं ढूंढते हैं, उनको तलाश करके उनको नजराना दीजिए। गौर से सुनिए, आज उस्ताद से अगर थोड़ा सा किसी को अगर थोड़ी तकरीर आ गई, आवाज अच्छी हो गई, लोग अपने उस्ताद अपने टीचर्स का ख्याल नहीं करते हैं। आपको
आपको पता है उस्ताद तो वो हीरा है, आपको उन्होंने खुद वो घर नहीं चाहते, घर रमजान में भी इदारे में गुजार देते हैं। कभी इन असातिज़ा का ख्याल तो रखा करें, कभी सोचिए इनकी जिंदगी को कुर्बानी का दिन होता है। आपकी ख्वाहिश होती है ईद की नमाज अपने बच्चों के साथ हम अपने यहाँ की ईदगाह में अदा करें, मस्जिद में अदा करें। क्या इनके पास दिल नहीं होता है? इनके पास भी तो दिल है। जब आपको दिल्ली में अगर रहते हो कितना रोना आता है और रो रो कर दुआ मांगते हो, मालिक हमें तुमने मजबूर बनाया है, तभी तो मैं ईद जैसे दिन भी दिल्ली में, पंजाब में, मुंबई में गुजार रहा हो। तो बताओ इन उलमाए किराम के बारे में कभी सोचो। ईद का दिन होता है, ये आपके साथ रहते हैं, कुर्बानी के दिनों में ये आपके साथ होते हैं, शबे बारात में ये आपके साथ होते हैं, रमजानो मुहर्रम में ये आपके साथ होते हैं। अब बताइए इन उलमा के बहुत सारी जगहों पे तो ये भी देखे जाते हैं 5 महीना इमाम साहब ने इमामत किया, जब इमाम साहब को यहाँ से हटाया तो उनकी तनख्वाह भी आधी लोग रख लेते हैं। सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर जर्रा बराबर भी नेकी करोगे अल्लाह उसका भी बदला देगा कयामत के दिन, और जर्रा बराबर अगर कोई गुनाह करेगा, जर्रा बराबर अगर किसी का कोई हक मारेगा, अल्लाह कयामत में इसका भी बदला देगा। इसलिए अपने आलिमों का सम्मान करें। ये कौम तो बाद में करेगी, लेकिन इनके जो शागिर्द हजरात हैं मैं उनसे कहूंगा खुदारा अपने उस्ताद को कभी मत भूलना, अपने उस्ताद को कभी मत तुम उनके एहसान को फरामोश न करना। उस्ताद का अदब क्या है? हजरत खलीफा हारून रशीद नाम सुना होगा आपने। हारून रशीद ने, बादशाह हारून रशीद ने, उसने अपने बेटे को जाकर दिया उस्ताद जी के पास, बहुत बड़े मुहद्दिस के पास, और कहा कि उस्ताद हजरत आप मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए, इनकी तरबियत कीजिए, ये तालीम हासिल करेगा दीन की आपके पास। अल्लाह को अकबर। सुनिए आगे, हारून रशीद तो बादशाह है, जैसे ही बच्चे को दिया 8-10 दिन के बाद हारून रशीद का काफिला सिपाहियों के साथ, नौकरों के साथ वहां से गुजर रहा था। हारून रशीद ने कहा सिपाहियों जरा घोड़ा रोको और काफिला को यहाँ रोका जाए, मैं चाहता हूँ जाकर देखूं कि मेरा बेटा कर क्या रहा है। जैसे ही हारून रशीद वहां पहुंचे देखा कि उस्ताद वजू कर रहे हैं, इनका बेटा हाथ से पानी डाल रहा है, पांव धो रहे हैं, वो उधर से पानी डाल रहा है। हारून रशीद ने जब देखा, आजकल का बाप अगर हो, उस्ताद अगर बच्चे से पांव दबवा ले तो लोग एतराज करने लगते हैं। उस्ताद अगर सर में तेल डाल ले, और यहाँ तक हालात हो गए आज जो इल्म उठता जा रहा है उसकी वजह एक ये भी है कि बच्चे उस्ताद की मुखालिफत में उतर आए। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना नहीं कि एक मुफ्ती साहब, अरे वो किसी भी मसलक और किसी भी यानी किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखता हो, लेकिन वो उस्ताद बन के वहां पे था। दो बच्चों को 2 डंडे 3 डंडे अगर लगा दिया, उस नालायक शागिर्द ने, दोनों ने मिलकर उसकी बीवी, उनकी बच्चियों, 2 बेटियों को यानी मौत के घाट उतार दिया। आखिर मैं कहता हूँ यही तुमने उस्ताद का सम्मान किया है। मास्टर अगर कोई है तुम्हारे यहाँ, अगर तुमने एक लाइन भी उससे सीखी है तो उसका एहतराम जिंदगी भर किया करो। हारून रशीद ने देखा बेटा हाथ से पानी डाल रहा है, उस्ताद पांव धो रहे हैं, तो जरा सुनिएगा, हमारी तरह बाप होता जाकर कहता पढ़ने दिया हूँ यहाँ बच्चे को, या आपकी खिदमत करने दिया हूँ, पढ़ने दिया हूँ, कुछ सिखाने दिया हूँ, या आपके बिस्तर लगाने को दिया हूँ? नहीं नहीं, वो खलीफा हारून रशीद थे। उसने जाकर उस्ताद से कुछ नहीं कहा, अपने बेटे के हाथ को पकड़ा, एक तमाचा जोर से गाल पे मारा और कहा नालायक, क्या यही तरबियत के लिए तुम्हें मैंने यहाँ दिया है? उस्ताद का अदब ये नहीं है कि तू सिर्फ पानी डाल, उस्ताद का अदब तो ये है कि एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उस्ताद के पांव को धो, तब भी उस्ताद
का हक अदा नहीं हो सकता है। ये उस्ताद का अदब है। अपने उस्ताद का सम्मान हमेशा अपने दिल में बाकी रखिए। स्कूल कॉलेजों से तो ये चीजें खत्म ही हो गई, आज भी मदरसे में कुछ चीजें अभी बाकी है कि अगर कोई शागिर्द, उस्ताद जी आ रहे हैं, उस्ताद साहब, शागिर्द अगर कोई साइकिल पे चल रहा है तो वो उस्ताद को देखकर एहतरामन साइकिल से उतर जाया करते हैं। ये भी उस्ताद का अदब है। वरना तो आजकल के बच्चे ऐसा लगता है कि वो मोटरसाइकिल लेके बगल से निकले तो लगता है इमाम साहब के नीचे की जमीन हिलाते निकल जाता है, उस्ताद साहब के बगल से जमीन हिलाते निकल जाता है। उस्ताद साहब भी सोचते हैं पता नहीं ये कब की दुश्मनी हमसे निकाल रहा है। खुदारा ऐसा न करें, अपने उस्ताद का भी सम्मान करें और अपने माँ बाप की भी कद्र करें। वरना वो बेटे, माँ बाप की खिदमत करना जरूरी है, जरूरी। अगर माँ बाप राजी नहीं है तो याद रखिएगा, वो बेटों से, उन बेटों से मैं कहूंगा जो अजमेर जाकर 10,000 की चादर चढ़ा देते हैं, जो किछौछा और बरेली जाकर 10-10 हजार की चादर चढ़ाते हैं, बड़ी देग में जाकर 10,000, छोटी देग में जाकर 5,000 डाल के आते हैं और मोच पे ताव देते हैं, फख्र करते हैं कि हमने वहां जाके 10,000 दिया, वहां जाके 5,000 दिया। इससे बेहतर ये है जब पता किया जाए, पता चलता है ये कि पूरे साल में एक दिन ईद के दिन भी अपनी माँ के लिए कपड़ा का इंतजाम नहीं करता है, बाप के लिए एक तहबंद और एक कपड़ा का इंतजाम नहीं करता है। क्या फायदा है ऐसी दौलत को लुटाने का? आपने क्या समझा है कि अगर माँ बाप नाराज हैं, हर साल आप उम्रे पे उम्रे करते जा रहे हैं, क्या आपके मुस्तफा राजी हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। माँ बाप को पहले राजी कीजिए। हमने तो यहाँ तक देखा, क्या दिन आ गए कि माँ, अभी अभी बिहार में एक जगह पे, नाम क्या लूं मैं, और ये मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूं कि एक नालायक बेटे ने सिर्फ 1 डिसमिल जमीन के चक्कर में, 1 डिसमिल जमीन के चक्कर में, एक नालायक बेटे ने सिर्फ इस वजह से कि उसको शक था कि मेरे बाप ने 1 डिसमिल जमीन मेरे बड़े भाई को दे दिया है ज्यादा, इस वजह से शक की बुनियाद पे बाप उसका जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा था, पीछे से वो बेटा घात लगा कर बैठा था, आगे बाप बढ़ा, पीछे से बाप ने, बेटे ने बाप की गर्दन पे इस तरह वार किया कि बाप उसी जगह पे तड़प तड़प के दम तोड़ दिया। क्या इसी दिन के लिए बाप ने पाला था? अरे बाप बाप होता है। बाप कौन है? जो आपके यहाँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में 2 बजे भोर में अगर कोई टोटो चलाता है, वो भी किसी बच्चे का बाप होता है। जो रेडी पे फल की दुकान लगाता है, वो भी तो किसी का बाप होता है। जो दिन भर ईंट ढोता है, वो भी किसी का बाप होता है। बाप तो वो है, अगर आपने कहा है बाबा हमें आइसक्रीम खाना है, बाप के जेब में पैसे ना हो तब भी आपका बाप मना नहीं करता है। अगर आपने कहा है कि हमें बिरयानी खानी है, आपके बाप ने कर्ज लेकर, उधार लेकर आपको बिरयानी खिलाया है। अरे माँ माँ होती है, एक माँ वो है, बचपने को आपने भूल गया, वो आपकी माँ है। जरा छोटे सोचे तो सही, जब आप नन्हे से थे, जब आप मुन्ने से थे, जब हम छोटे से थे, तो माँ क्या करती थी? माँ का मकाम तो वो है कि माँ हमें और आपको, हाँ ठीक है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, लेकिन बीच में ये बात है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे, अरे हमारा तो ये अकीदा होना चाहिए, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ओ भाई, कोई कहता है फला अच्छा, कोई कहता फला अच्छा, कोई कहता फला अच्छा, लेकिन याद रखें जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो तो ये हमेशा कहता है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। माँ बाप को राजी कीजिए। और मैंने पहले कहा था ना कि 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है।
दो मैंने बताया था, एक छोड़ दिया था ना, उसको अब यहाँ सुन लीजिए। सुने सुने मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए दावतुल वालिदैहि लिवलदिही, माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथों को उठा दे, अल्लाह ताला माँ बाप के उठे हुए हाथों के सदके में औलाद की हक में माँ बाप की दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसलिए लोगों, मैं आपसे कहूंगा यहाँ जितने लोग बैठे गए, अगर माँ किसी की नाराज है, किसी का बाप अगर नाराज है, तो तेरा जलसे में आना भी बेकार होगा। तो याद रखना, अजमेर जाना भी तेरा बेकार होगा, बगदाद जाना भी बेकार होगा, उम्रे पे जाना भी बेकार होगा। इसलिए जिनके माँ बाप नाराज है, यहाँ से उठ के जाना, अपने माँ बाप के कदमों से लिपट जाना, कहना ओ मेरे बाबा, ओ मेरी माँ, हमने जलसे में जाकर सुना है एक बंगाल से मौलाना आए थे, उससे मैंने सुना है अगर आप दोनों नाराज रहोगे, हमारी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप के कदमों से लिपट जाना और कहना हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों राजी हो जाओ। ओ माँ, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके रुपए पैसे नहीं चाहिए, आपके महल्लों मकानात नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी और बंगला नहीं चाहिए। ओ माँ, अगर हमें कुछ चाहिए तो माँ, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। जिनको माँ बाप से जितनी मोहब्बत है ना, उतनी बुलंद आवाज से बोलना है दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऊंचा बोलो, क्या बोलना है? मेरे मौला जो जितनी बुलंद आवाज से बोले, अगर उनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा, और जिनके वालिदैन बाहयात है, उनका साया उनके सरों पर तादेर कायम दायम फरमा। पूरा मजमा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और बुलंद आवाज से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा। हाय हाय हाय, एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? अरे बोलो ना भाई। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो। अच्छा, औरतें आजकल लोरियां गाती है। हमारे इलाके में हजरत एक लोरी गाती है औरतें, पता है? अगर बच्चा नहीं सोएगा, बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा, बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा अगर सुकून से नहीं है, बेचैन है, तो माँ गोद में लेती है और एक लोरी गाती है। आ रे आबा, पा रे आबा, नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटू। हमारे इलाके में गाती है। अच्छा, आपके यहाँ भी कुछ न कुछ तो होगा, लोरियां गाती होंगी, लेकिन मैं कहूंगा माँ बहनों को जाकर बताएं, ओ मेरी माँ और बहनों, अगर तेरा बच्चा नहीं सोए, अगर तेरा बच्चा बेचैन होने लगे, अगर तेरा बच्चा सुकून से ना सोए, तो लोरियां ना गाना, बल्कि दुरूदे मुस्तफा गुनगुनाना, नाते मुस्तफा गुनगुनाना। और सुनो लोगों, माँ अगर लोरियों में दुरूदे मुस्तफा गुनगुनाने लगे, तो फिर याद रखे माँ का अंदाज भी निराला होगा, बच्चा भी सुकून की नींद सोएगा। लेकिन माँ की लोरियों में बड़ा दर्द होता है। लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। और ऊंची आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। इस्लाम की सुंदरता क्या है? जरा पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो इस्लाम जिंदाबाद। पूरा मजमा बोला इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम, इस्लाम,
اسلام ایک سندر مذہب ہے، لیکن اسلام کی بیوٹینس کیا ہے ذرا سنیے گا۔ اسلام نے کیا کہا ہے اور اس کتاب میں کیا باتیں لکھی ہے۔ کتاب میں لکھی ہے وایردے یرمگڑی والونا ششنکا پرجاپتشٹم پر پتامہشٹ نمو نمستے ششاہشکرتا پنشٹ بھویوپتی نمو نمستے۔ اگر اس کو کبیر داس کے انداز میں بولوں تو کبیر داس نے کہا ہے اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے، جس نے سب کو جنم دیا ہے، بڑی اسی کی شان، ارے دوجا نہیں ہے مہان رے مورکھ، دوجا نہیں ہے مہان، دوجا نہیں ہے مہان۔ اور ایک پنڈت نے کہا ہے اگر محبت کی بات کرتے ہو کہ اسلام کیا سندیش دیتا ہے تو پنڈت سومناتھ ورما نے کہا ہے جس کو پڑھ کر میں پورے ہندوستان میں مشہور ہوا، تو ذرا سنیے گا۔ پنڈت سومناتھ ورما نے کہا ہے سارا جگ چھوٹے تو چھوٹے دیا دھرم مت چھوڑ، اور جس نے کیا ہے جگ کی رچنا اس سے ناتا جوڑ، اے لوگو اس سے ناتا جوڑ۔ میری بات ہو تو تم کچھ کہنا، یہ تو پنڈت نے کہا کہ بن کے منوشے آیا ہے جگ میں کیوں تو گیا یہ بھول، اور یہ جگ سے بن کی پھلواری جس کا منوشے ہے پھول، اے لوگو جس کا منوشے ہے پھول۔ اور ناظم بھائی پنڈت نے آگے جو لکھا قلم توڑ کر رکھ دیا، حد کر دیا۔ پنڈت نے اپنے ماننے والوں سے کہا لوگو ماٹی کی مورت کو پوجے، ماٹی کی مورت کو پوجے جس میں نہیں ہے جان، ارے جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، جس مورت میں جان ہے پیارے، اس کا کرے اپمان زمانہ، اس کا کرے اپمان، اور چلتی پھرتی یہ مورت ہے مالک کی پہچان، اور جس نے منش سے پریم کیا ہے اس کی بڑی ہے شان، اے لوگو اس کی بڑی ہے شان۔ سنو اس کا خلاصہ لکھا ہے وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا، وایرد منا ہوا، یرمگڑ منا آگ، ورون کے مانا سورج، ششانک کے مانا چاند۔ کہا وایردے یرمگڑی ورونا ششنکا پرجاپتشٹم پر پتامہش، کہا کہ اس سوریہ کو، چندرما کو، ہوا کو، اگنی کو، زمین کو، آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جس نے پیدا فرمایا ہے، نمو نمستے ششاہشکرتا، ہم اس مالک کی بارگاہ میں نتمستک ہوتے گئے، متھا ٹیکتے گئے۔ اور آگے سنو کہا پنشٹ بھویوپتی نمو نمستے، ایک بار نہیں بلکہ کروڑوں بار متھا ٹیکتے گئے، ہزاروں بار متھا ٹیکتے گئے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ کا قرآن سنیے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، جو ان چیزوں سے پاک پوتر صاف ہے وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ایک ہے، ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اولاد بھی نہیں ہے، یعنی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور کتنا ٹائم ہوا ہے؟
अच्छा अच्छा 12 बजने वाले हैं। फिर अभी मेरे बाद एक बहुत ही अच्छे खतीब उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जलीस साहब किबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे, उन्हें भी आपको समाअत करके जाना है। और वो पुरबहार मंजर दस्तार बंदी का प्रोग्राम वो भी आप लोगों को यहाँ से देख कर जाना है। तो इसलिए पूरा मजमा एक बार बोले इस्लाम, और ऊंचा बोले इस्लाम जिंदाबाद। जरा गौर से सुनिएगा, ये इस्लाम कहता है। इस्लाम कहता क्या है? इस्लाम ने कहा है कि लोगों याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी अगर परेशान है, जब तक तेरा पड़ोसी तुझसे राजी ना हो जाए, जब तक तेरा पड़ोसी तुझसे खुश ना हो जाए, तब तक तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता है, पक्का ईमान वाला नहीं हो सकता है। अपने पड़ोसी का ख्याल किया कीजिए, ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम की ब्यूटीनेस को अगर आप पढ़ते जाएंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ कि आपको इस्लाम से मोहब्बत होती चली जाएगी। इस्लाम एक अच्छा मजहब, सबसे बेहतर मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। लेकिन शर्त है कि हमको और आपको उलमा से हुजूर की सीरत पढ़नी होगी, हुजूर की सीरत सुननी होगी। हुजूर की सीरत को सुनते जाएंगे, अल्लाह ताला आपके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालता जाएगा। ओ चाचा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तकरीर खत्म हो रही है क्या? जाइए, नहीं अब नहीं बोलिएगा आप लोग, जाने दीजिए किसी को, हम तकरीर खत्म करेंगे ही नहीं। अभी 2 घंटा बोलेंगे, जिनको जो करना होगा कर लीजिए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा 2-4 लोग जो जाए ना तो जाने देना, हम मना भी नहीं करते भाई, जिनको जाना है जाइए। वरना एक जगह एक लड़का बीच में बैठा था, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, मौलाना साहब की तकरीर के दरमियान खड़ा हुआ वो लड़का, मौलाना साहब ने कहा ए कहां जा रहा, बैठ, चुप से बैठ गया। फिर दोबारा खड़ा हुआ, मौलाना साहब ने कहा ए कहां जा रहा, बैठ, फिर बैठ गया। तीसरी बार खड़ा हुआ, इतनी जोर से मौलाना साहब ने डांटा, कहा अरे बैठ। बैठा तो सुबह तक बैठल रह गया। तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए, अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू, अब तक तो तकरीर हो रही थी, बड़ा जा रहा था, अब क्यों नहीं जाता है? कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जिनको जाना है जाने दीजिए। कुछ ज़रूरतें हो सकती है लोगों की, लेकिन हम तो जानते हैं जो ऐसी महफिल में आकर बैठते हैं उनके मुक़द्दर को अल्लाह सवार देता है। ऐसी महफिल में अगर कोई आकर बैठते हैं, वो उनके दिल में हुजूर का इश्क बेदार हो जाता है, और वो जब तक जिंदा रहता है तो वो ये कहता रहता है क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये नींद क्या है भाई, ये नींद क्या है? क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जब तक जिंदा रहिए, पूरा मजमा बोले इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, और बुलंद आवाज से कुरान था, कुरान है, कुरान। अच्छा हजरत का हुक्म था, एक पढ़ दीजिए मंत्र, पढ़ दें, पढ़ दें। अरे पढ़ दे, किसी दूसरे का नहीं, अपना सुनाता हूँ, पढ़ूं? पूरा मजमा सुनो, अपना अपना है ना, तो इसमें आप सुभान अल्लाह बोल सकते हो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप बोलते नहीं है, जानते एक बार अगर सुभान अल्लाह बोलेंगे कितनी नेकियां मिलेंगी? 90 नेकियां। कितनी नेकियां? जब तक जिंदा है ना नेकियां करते रहे। पिछले साल आपके जलसे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले साल थे, इस साल वो कब्र में होंगे। बोलो ना भाई, कब्र में होंगे। कब्र में चले गए तो क्या वो अपनी मर्जी से क्या एक नेकी कर सकता है? अरे बोलो ना भाई, वो जो कब्र में पिछले साल इस जलसे में थे, अब कब्र में चले गए, क्या वो अपनी मर्जी से 1 रकात नमाज पढ़ सकते हैं? एक बार सुभान अल्लाह बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। लेकिन सुनो सुनो लोगो, ये सांसें जब तक चल रही है, ये जिंदगी जब तक सलामत है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तक जबान को सलामत रखा है, खूब खूब सुभान अल्लाह बोला करो। अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलोगे, जिंदगी इतनी बड़ी अल्लाह की दी हुई नेमत है, जब तक ये सांसें चल रही है, एक बार सुभान अल्लाह बोलोगे, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जब तक जिंदा है खूब नेकियां कीजिए, कब कौन इस दुनिया से चला जाए कोई गारंटी नहीं है। जितने लोग इस गांव से, जितने मोमिनीन मोमिनात गए, अल्लाह ताला सबों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। अरे आमीन बोलिए भाई, आमीन। हम यहाँ बैठे गए सुने, हम तो ये कहते गए संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसमें बोल सकते हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह। संकट मोचन कहते किसे? कभी आप कभी हिंदुस्तान के किसी कोने कोने में जाएंगे, देखेंगे मंदिर के सामने लिखा रहता है संकट मोचन मंदिर, यानी उसका अकीदा है कि संकट मोचन मंदिर यानी संकट को दूर करने की जगह। लेकिन हम गुलामाने मुस्तफा गए, हम तो कहते गए संकट मोचन संकट हारी। अगर अरबी में हम यहाँ बैठ कर कहें हम तो हुजूर के गुलाम है, ये उलमा अगर कहने पे आ जाए, ये उलमा कहेंगे या रसूल अल्लाह के उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम में मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना। अगर इसी को पलट के मैं अपने अंदाज में कहूँ तो ये मैं कहने लगो संकट मोचन संकट गारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा की कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल। तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह उपदेश मिला संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। और हृदय से तुमरे है आभारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। जितनी बातें हमारे बोलने में, आपके सुनने में अगर कुछ कमी पेशी हुई हो, अल्लाह तबारक व ताला उन गलतियों को माफ फरमाए।